ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد کا دور پاکستان۔ ایوان صدر میں ابوظہبی کے ولی عہد کو نشان پاکستان دینے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے شیخ خالد بن محمد کو نشان پاکستان سے نوازا۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور وفاقی کابینہ کے اراکین سمیت اعلیٰ حکام موجود تھے۔ اس سے پہلے اسلام آباد پہنچنے پر شہزادہ شیخ خالد بن محمد کا صدر مملکت وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وفاقی وزراء نے استقبال کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں بینکنگ کے شعبے میں تعاون کی دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ کان کنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ، ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور ولی عہد ابوظہبی شیخ خالد بن محمد شریک تھے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا دور پاکستان مکمل، واپس چلے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دوبارہ لاہور پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اہم فیصلوں کی توقع ہے۔ صدر مملکت سے پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنما بھی ملاقات کریں گے۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے تباہی، برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے حادثات، راستے بند، سیاح پھنس گئے، امدادی کارروائیاں شروع۔ کمراٹ روڈ بریکوٹ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند، سیاح اور مقامی افراد محسوس۔ شاہراہ قراقرم بھی مختلف مقامات سے بند، گاڑیاں پھنس گئیں۔ کئی جگہوں پر سیاحوں کو مقامی سکولز میں ٹھہرایا گیا۔ مظفر آباد میں لوہار گلی روڈ بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی۔ پیر چناسی روڈ پر بھی لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ وادی نیلم میں سری کے مقام پر برفانی تودے گرنے سے 40 سے زائد مسافر پھنس گئے۔ نتھیا گلی میں بھی برفباری کے باعث سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ ڈی جی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق سیاحوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے خصوصی کنٹرول روم قائم۔ برفباری کا سلسلہ جاری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ دیامر، بابو سر ٹاپ، کالام، عالم جبہ نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ گریس ویلی میں پارہ -9، شاردا میں -4 ریکارڈ۔ استور میں شدید برفباری، نظام زندگی مفلوج، لوگ گھروں میں محصور۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، مری اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی۔ ججز تقرری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 8 سیشن ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ اجلاس میں راجہ غضنفر علی، قیصر نذیر بٹ، اکمل خان، تنویر احمد شیخ، جزیلہ اسلم، طارق محمود باجوہ، شاہد سعید اور اکبر گل خان۔ وفاقی کابینہ میں 12 وفاقی وزراء، 9 وزرائے مملکت کا اضافہ، 3 نئے مشیر اور 4 معاونین خصوصی بھی شامل۔ کابینہ اراکین کی تعداد 50 ہو گئی۔ نئے اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئے اراکین سے حلف لیا۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں۔ حلف اٹھانے والے وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، معین بٹو، مصطفیٰ کمال شامل۔ زردار یوسف، علی پرویز، شزا فاطمہ، جنید انور، خالد مکسی، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر بھی وفاقی وزیر بن گئے۔ رضا حیات ہراج اور طارق فضل چودھری نے بھی بطور وفاقی وزیر حلف اٹھایا۔ ملک رشید، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک وزیر مملکت بن گئے۔ کھیل داس کوہستانی، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہرکیانی اور مختار بھرت نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھایا۔ ٹریفک جام میں پھنسنے کی وجہ سے عمران شاہ، شزرا منصب اور ارمغان حلف نہ اٹھا سکے۔ پرویز خٹک، توقیر شاہ اور محمد علی کابینہ میں بطور مشیر شامل۔ 12 وفاقی وزراء، 9 وزرائے مملکت، وزیراعظم کے 3 نئے مشیروں اور 4 نئے معاونین خصوصی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اتحادی جماعتوں ایم کیو ایم کے 2، آئی پی پی کے 2 اور بلوچستان عوامی پارٹی کا 1 نیا رکن بھی وفاقی کابینہ میں شامل۔ پی ٹی آئی کی حمایت سے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر جیت کر رکن اسمبلی بننے والے اورنگزیب کھچی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد کابینہ کے رکن بھی بن گئے۔ پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے والے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر مقرر۔ اپنی سوچ، اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر وہ وہی رویہ رکھیں گے جو ان کا اقتدار میں تھا تو پھر مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، وقت بتائے گا، ان کو ایک موقع ملا ہے، جیل میں سوچنے کا وقت ملتا ہے، کنٹمپلیٹ کرنے کا، ریفلیکٹ کرنے کا وقت ملتا ہے۔
हुकूमत की सोच छोटी और मनफी है। अता तारण ने हमें कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी थी। 40 से जायद FC के लोग हमें रोकने के लिए आए, पुलिस और रेंजर्स के अलावा थी। शाहिद खाकान अब्बासी की सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा ताकत का बेदरग इस्तेमाल किया गया। हुकूमत का रवैया PTI की निस्बत ज्यादा शिद्दत वाला है। पूछना चाहता हूँ आखिर हुकूमत को किस बात का खौफ है? ऐसे हालात हो चुके हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर सकते। मुल्क की खातिर तमाम जमातों को यकजा करने की सोच रखते हैं। बानी PTI का बड़ा सियासी किरदार बनता है। सियासत करनी है तो रवैया बदलना पड़ेगा। PTI की पार्लियामान में नुमाइंदगी है, अवामी मकबूलियत भी रखते हैं। सोचना चाहिए वो किस रास्ते से इख्तिदार में आए। बानी PTI के रास्ते बंद हैं तो पहले भी रास्ते बंद होते रहे। अपोजिशन की सिमत भी दुरुस्त होनी चाहिए। PTI 9 मई और 26 नवंबर को नाकाम हुई, अब फिर इसी तैयारी में है। विफाकी हुकूमत ने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने का फैसला नहीं किया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि ताले किसने लगाए, क्यों लगाए। अपोजिशन को नए इलेक्शन का मुतालबा नहीं करने का हक है। ये पहले इलेक्शन नहीं जिसको अपोजिशन मुतनाज़ कह रही है। हमने भी 2018 के इलेक्शन को मुतनाज़ कहा था और ऐसा ही था। हम कहते थे हमारी 52 सीटें छीन कर PTI की हुकूमत बनाई गई। 2013 के इलेक्शन में औजार का मामला भी टेढ़ा था, जबकि तहरीक इंसाफ ने हमें कभी सियासी असीर नहीं माना। सबको इल्म है कि बातचीत की दावत का अपोजिशन लीडर ने क्या जवाब दिया। शुक्र है चैंपियंस ट्रॉफी में हमें एक पॉइंट मिल गया, 0 पर नहीं रहे। इजाजत ना मिलने पर इस्लामाबाद के होटल की लॉबी में अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस। दाखिले से इनकार पर अपोजिशन रहनुमा होटल का गेट जबरदस्ती खोलकर होटल में दाखिल। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मौजूदा हुकूमत जाली है। मेहताब अब्बासी ने कहा कि मुल्क बचाना है तो कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी। हुकूमत छोटे से प्रोग्राम से डरती है। बलूचिस्तान में बदअमनी है, वहाँ के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, पीका कवानीन के बाद इस मुल्क में आज़ादी इजहार राय खत्म कर दिया गया। साहिबजादा हामिद रजा बोले, होटल की इंतजामिया से कहूंगा कि हमारे पैसे वापस करो। मसला असेंबली में ले जाऊंगा कि हमें कहा गया गेट फलांग कर अंदर आओ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह सियासत नहीं, शराफत का मामला है। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं कि इन्हें सुना जाए और भेड़ बकरियां नहीं बनाया जाए। मुस्तफ़ा और मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि वोट को इज्जत सिर्फ इस वक्त ही दी जाती है जब आपको वोट मिल रहा हो। आज नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। ओपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने की कोई अहकाम जारी नहीं किए। 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, इन्हें पूरी इजाज़त है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 1947 से आज तक जितने अलायंस बने वो किसी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सके। फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। अपोजिशन अलायंस में सिर्फ एक पैबंद लगा हुआ है जिसे PTI कहते हैं। वो पाकिस्तान के मफाद को तरजीह नहीं देती। इनके अपने अहदाफ और मकासद हैं। इनके लिए बानी PTI की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जिसने कराची में हमारी सीट वापस की। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं इसलिए जेल में हैं। इंतखाबात के दौरान हमें कन्वेंशंस करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहते हैं। तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। आज हमें सब कुछ भूल कर मुस्तकबिल के बारे में लाहे अमल तैयार करना होगा। आइन में लिखा है कि मुल्की हालात को देखते हुए दोबारा इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इनकलाब की बात नहीं, आवाम उठ चुके। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मैंने मशवरा दिया था कि KP हाउस में कॉन्फ्रेंस कर लें। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, सियासी बहरानों में धकेला गया। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई अहदेदारों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की तरक्की का सफर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हों। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा करना नून लीग का एजेंडा है। एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बेड़ा उठाया है। अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान की मईशत को बहाली के रास्ते पर डाला है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। नवाज शरीफ का ANP के जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम, कहा इनकी शमूलियत से नून लीग की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
समझ नहीं आ रहा रियासत को अपोजिशन से क्या खतरा है। रऊफ हसन की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पिछले 3 साल से आइन की पामाली की जा रही है। तस्लीम करते हैं कि अपने दौरे हुकूमत में हमसे भी गलतियां हुई हैं। हमारी हुकूमत में अपोजिशन जमातों ने 4 मरतबा एहतजाज किया। हमने किसी को नहीं रोका और ना ही झूठे मुकदमात बनाए। होटल इंतजामिया पर हुकूमत की जानिब से दबाव डाला गया। हम सड़कों पर निकले ही नहीं, बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। ये नहीं हो सकता। आप हमारी जगह लेते रहें और हम चुप रहें। पीटीआई चाहती है कि मुल्क के खातिर तमाम जमातें इत्तेहाद से चलें। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। यकम जुलाई से ज़राई इनकम टैक्स का निफाज होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी सरमायाकारों के वक्त से गुफ्तगू। कहा, होलसेल, रिटेल, रियल एस्टेट सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। हुकूमत माली नज़्म ज़ब्त और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़म है। अखराजात में कमी और मालियाती नज़्म ज़ब्त हुकूमत की अवलीन तरजीह। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमती एजेंडे में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। वक्त की वज़ीर ख़ज़ाना को लंदन में इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी पीटीआई कौमी मुजरिम हैं। इन्हें हटाकर ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। बानी पीटीआई ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा इसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी पीटीआई की एक ही उम्मीद है कि शायद अमरीका माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफ़ा है कि अमरीका बानी पीटीआई को रिहाई दिलाएगा, फिर बानी पीटीआई रिहा होकर पाकिस्तान को अमरीका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। केएमसी के 10,000 मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनके 15 अरब रुपए के बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए। केडीए और वाटर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के भी 10 अरब रुपए से ज्यादा के वाजिबात बाकी हैं। कराची के 25 टाउन्स बना दिए गए, मगर इन्हें केएमसी ने मानने से इनकार कर दिया। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में वफाकी हुकूमत का भी कसूर है। रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात अदा शहरी इदारों को इनके असल नुमाइंदों के हवाले किया जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। शर्जील इनाम इमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, फारूक सत्तार तासुब की सियासत कर रहे हैं। फारूक सत्तार चाहते हैं कि कराची में एक बार फिर फितना फसाद हो, फिर बोरी बंद लाशें मिलें। फारूक सत्तार नफरत अंगेज बात करते हैं। इनकी सियासत खत्म हो चुकी। फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। हमने फारूक सत्तार के कहने पर इनकी फील्ड पर नहीं खेला। फारूक सत्तार दोबारा इलेक्शन लड़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदबाजी हैं। सिंध हुकूमत ने पिछले 5 साल में 160 अरब रुपए से ज्यादा के बकायाजात और पेंशन की मद में अदायगियां की। मुल्क में एक ही दिन रमजान के आगाज का मिशन रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेरे सदारत इजलास औकाफ बिल्डिंग में शाम 6:30 बजे मुनक्किद होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि नया चांद सुबह 5:45 पर पैदा हो गया। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान कम है। रमजानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज चांद नजर आने और पहला रोजा 1 मार्च को होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की रमजानुल मुबारक के चांद की रोयत की अपील। रवां साल के लिए ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान को सेविंग अकाउंट्स, मुनाफा और नुकसान शेयरिंग और दीगर मुशाबा अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। वजारत तख्फीफ गुर्बत की बैंकों को कटौती के बाद ज़कात मरकजी ज़कात अकाउंट में जमा कराने की हिदायत। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी। ART 3 कोचेस पर मुश्तमिल बस है, जिसमें 300 से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। रिवायती फ्यूल के बजाय मुकम्मल सोलराइज्ड सिस्टम पर चलेगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा।
3 مراحل میں 10-10 شہروں میں نیا ٹرانسپورٹ سسٹم لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم پنجاب میں 4 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ سندھ کابینہ کا کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں، خواتین کے لیے پنک الیکٹرک موٹر سائیکلیں خریدنے کا فیصلہ۔ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ K4 منصوبے کے لیے پانی کی فراہمی، کنجر جھیل اور KB فیڈر کی فوری بہتری کا بھی فیصلہ۔ ڈاؤ یونیورسٹی کو اینٹی سینک اور اینٹی ویکسین تیار کرنے کے لیے ایک کمپنی قائم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے رمضان المبارک کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔ مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کا بھی حکم۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ انتظامیہ شاہ خورنوش کی قیمتوں پر نظر رکھے، ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ رمضان میں پانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا شہید اسپیشل اکنامک زون کا دورہ۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر جانگ زیڈونگ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ زراعت، توانائی، مائنز اینڈ منرل میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی سفیر کو KPK میں سولر سسٹم اور معدنیات کے لیے صنعتی یونٹس لگانے کی پیشکش۔ الیمین گنڈاپور نے کہا کہ KPK میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صنعتوں کو مختلف مراعات اور سستی بجلی کی فراہمی پر کام کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کلین اینڈ گرین انرجی پر کام کر رہی ہے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے وزیر اعلیٰ کے عزم کو سراہتے ہیں۔ پاک چین تعاون سے دوستانہ تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔